हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, आवर नेक्स्ट टॉपिक। मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज ग्रो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्रॉप्स। कैन यू थिंक्स वाई? This is most important here. The India is grow almost each and every crops. If you consider the variety of crop grow from the Kashmir to Kanyakumari and western coastal of Gujarat to extremely northern eastern state of Arunachal Pradesh, there would be hundreds of crops. We group all these crops into the four broad types. Let us discuss their main crops under each types of detail. In this table, there is the most important here are types of crop, meanings and major crops here. The food grain crops here, a crop that is used to human consumptions only there. A major crops here, rice, wheat, maize, maize, pulses and oilseed. There is a food grains here crops, but commercially crop is a crop which are the growing for sale, either raw material from a semi-processed form. But major crops here, cotton, jute, sugarcane, tobacco and oil seed. That's important. And the next year, third year, plantation crop. Plantation crop is which are the growings on plantations covering large estate. There is example tea, coffee, coconut and rubber. But the next year, fourth is a horticulture. Horticulture is section of the agriculture which the fruits and vegetables are growing. There is a fruit and vegetable in this type. And come here, the main is a food grains on the detail. The next here, food grain on the detail here. The first of all, rice. The food grains is the first here. Rice is the most important from crop of India. It is a predominantly as a kharif or summer crop. It's a cover about 1/3 of total cultivated area of country and provide a food to more than half of the Indian population. Maximum population of the India is of rice consumer. Do you know what types of geographical conditions are required for rice cultivations? This is an important question. If you look at the rice growing area of India, you should be find that this is the only crop in India which is growing in a variety of conditions and interesting below. Therefore, there are some of the geographical conditions are flowing here. The first of all here, a geographical condition is temperature. Temperature is the most important here. The rice required to hot and humidity condition. The rice is required to hot and humidity condition. The temperature should be a fairly high, is 24 Celsius. Mean monthly temperature with the average temperature of 22 Celsius to 32 Celsius. There is a temperature is the main growing of the rice in this temperature. And the next year, rainfall. There is a rainfall is important. Rainfall is ranging between to the 150 to 300 centimeter is suitable for its grow in area of Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh, where a rainfall is the less than 100 centimeter. Rice is cultivated with the help of irrigation. They're important. And the next year, soil. Rice is grow in the a variety to soil condition, but deep clays and loamy soil provide their ideal condition. The rice is primarily is grow in the plain area. It is also grow below sea level at the Kutanad, Kerala. Hill areas of the northern eastern part of India is the valley of Kashmir. The next year, labor. Labor is important. The rice cultivation is required to easily available cheap labor because most of the activities associated with there are labor oriented and are not very well situated from the mechanism. And the important here, distribution. Rice grow in almost all the state of India. Rice is growing to almost all of the state of India. The main rice producing states are Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttarakhand, Chhattisgarh, Punjab, Odisha, Uttar Pradesh, Karnataka, Assam and Maharashtra. It is also growing in Haryana and Madhya Pradesh, Kerala, Gujarat and Kashmir Valley. This is the most important. Let's see the map
the detail of the rice on the map. On your screen, there is the most important map here. India rice production. India has rice production is a major area and other area is also here. There is the most important. The major area is Bihar, Bengal, and there are Arunachal Pradesh and the maximum area on there. But is other area is a very less. But is the most important is a major area Bihar, and there's also is a Jharkhand, and the all area is important here. The next year, wheat. The wheat is the second most important food crop of India, the next to be rice. It is a Rabi or winter crop. It is sown in the beginning of the winter and harvested in the beginning of summer. Normally in northern India, the sowing of the wheat began to the month of October, November, and harvesting is done in the month of the March, April. This is the staples of the food of millions of people, particularly in the northern and northern western region of India. Unlike rice, wheat is growing mostly as a rabi or winter crop. That's important. And let's see the detail. Some of the geographical conditions are flowing. There's important here. Geographical condition. First of all here, temperature. There is a temperature. It's a primary crop for a mid-latitude grassland. It's a required cool climate. There is a cool climate is required on this crop. The ideal temperature here are between 10 Celsius to 15 Celsius means the less temperature at the time of sowing and 21 Celsius 26 Celsius 6 at the time of wrappings and harvesting. That's important. Geographic conditions on temperature. And next year rainfall. Wheat travel well in an area receiving annual rainfall of about 75 centimeter. The rainfall is required here 75 centimeter annual rainfall, about 100 centimeter in the upper limit for a wheat cultivation. As you know, area is receiving more than 100 centimeter of rainfall are suitable for the rice cultivation. Like a rice, wheat can be also be growing by irrigation method is area where a rainfall is less than 75 centimeter. But on the other hand, the frost at the time of flowerings and hailstone at the time of wrappings can causing heavy damage to the wheat crop. And the next year, soil. Although there is a wheat can be grown in a variety of soil, but Belgian is a fertile loamy and clammy loamy soil is the best suited from the wheat cultivations. Plant areas are very well situated from wheat production. And most of all here, labor. Wheat is a highly mechanized and require less labor. And the next year, distribution. The main regions of wheat production is India are UP, Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, UP, Punjab and Haryana together produce more than 66% of the total wheat of the country. That's important. Punjab and Haryana together produce more than 66% of the total wheat of the country. That is the most important. Let's see the map. On your screen, there is the most important wheat production. You know that the major area here, Punjab and Haryana. Punjab, Haryana has 66% for all over India. There is 66%. That's important. The production of wheat here, 66% of Punjab and Haryana. And the less there is a 34% is other side of India. That is important. The next year, mills. Mills are short duration warm weather crops, and these are correlates to grain crop and are used for both food and fodder. These are the kharif crop, and these are sown in the May, August and the harvesting in October, November. Today, mills are mostly consumed by poor people as they are stable food. In India, a lot of mills is growing, and this is now by the various local name. The sum of there is a Jwar, Bajra, Ragi, Koras, Cotton, Khatki, Haraka, Bauti, Raga, Ira. This is the most important name was common here. In India, is a Jwar, Bajra and Ragi are
growing on the large area, but unfortunately, area is under this crop has a drastically reduced over the year. Some of the geographical conditions for growing this crop are flowing. There's important geographical condition here. The first of all here, temperature. Temperature crops here, these crops are there growing where temperature is high, which ranges between 27 Celsius to 32 Celsius. This is important temperature. And then rainfall, as I mentioned earlier, that mills are dry land crop. Therefore, the rainfall ranging from 50 to 100 centimeters is ideal for there is a cultivation. The 50 to 100 centimeters is ideal is a cultivation. And the next is soil. Soils and mills are the less sensitive to soil deficiency, and there can be grow in there is inferior abuse and loamy soil. That is important. And the next year, distribution. The distribution Jowar Bajra is growing both in North and South India, whereas the ragi is generally concentrated in the South India. Jowar Bajra is growing to the Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Haryana and Punjab. Ragi is generally concentrated in the southern India. There is a Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh. There is the most important distribution here. And the next year, pulses. The pulses is important here. It includes a number of crops which are mostly is a leguminous as provide the invaluable protein to be a vegetarian population of India. There is a vegetarian population of India. There is a protein of source of pulses here. As they have here, the source of protein is a comparison to be those who consume a meat and fish, and they also serve as a excellent forage and grain concentrate in the cattle feed. Apart from that, this is leguminous crops have the capacity to be fixed atmospheric nitrogen in the soil and are normally rotated with the other crops to be maintained and restore soil fertility. A large variety of pulses are found in India. There is an important large variety of pulses are found in India, and these are a gram, tur, arhar, the peasant pea as a red gram, urad, black grams, moong, green grams, masoor, lentil, and kulthi is a horse's gram, matar, peas, etc. But among this is above to mention it to variety only a gram and tur and the arhar are more important because they are important. Arhar is very important for here. The first of all here gram. Gram is the most important of all the pulses. It is a count for about 37% of the production and about 30% of the total area of pulses in India. It is a Rabi crop which is sown between to the September and November, and it is harvested between to the February and April. It is either cultivated as a single crop or mixed with the wheat, well, and seeds and mustard. That's important. Important also here a geographical condition. Some of geographical condition are flowing here. The important temperature. First of all, temperature. It is growing in the wide range of climatical condition. The mild, cool, and comfortably dry climate with the 20 Celsius to 25 Celsius temperature. But rainfall is very less here. 40 to 45 centimeter rainfall in the favorable for a gram cultivation. That's important rainfall here. And soil, it is growing well on the loamy soil is important. But distribution is here. See, now there is a gram is cultivated in a several part of country. However, 90% of the total production come from a 5 state only. There is a 90% come to the only 5 state. The name here, this state are the Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana and Maharashtra. There is a 5 state, 90% is giving here on population. The next year, commercially crop. Commercially crop, there is an important. As I mentioned in the beginning of the lesson, commercial crop are those crops which are growing for a sale, either a raw material from, semi-proceed from. In this section, we will be learn more about the selected cash crop.
selected a cash crop here, sugar cane, cotton, jute. There is the most important crop here. But two is range, tea and coffee also. And three is oil seed, groundnut, mustard and rapeseed. This is important. But first of all on your screen there is a sugar cane. Sugar cane, you think life without sugar is your everyday life. There sugar is the most important. Everyday life uses here. It's almost impossible to be think of life without a sugar. You know, sugar can belong to be a bamboo family of plants and it is a indigenous of India. It is a kharif crop. It is a kharif crop. It is the main source of sugar, gur and khandasari. Sugar, gur and khandasari. It also provides a raw material from to the manufacturing of alcohol. Baggage of the crust can it reduce has also the multiply uses. It is used for manufacturing of paper. It is also can efficient a substitute for the petroleum product and a host of other chemical product. A part of it is also used as a fodder. That's important. The important is most of geographical conditions for the growth of sugarcane are as following. That's important. The geographical condition here. First of all, here on screen, temperature. Temperature require hot and humidity climate with on average temperature of 21 Celsius to 27 Celsius. There is a most important ideal temperature on growth of sugarcane. And the rainfall is important. Rainfall is a 75 to 150 centimeter rainfall is available for a sugarcane cultivation. There is an ideal here also rainfall here 75 to 150. Irrigation is required in those areas where rainfall is less than is prescribed limited. And the next year soil. It is can be grown in a variety of soil. In fact, sugarcane can be tolerate any kind of soil that can be retain a moisture. But deep, rich, loamy soil is ideal for its growth. The soil should be rich in nitrogen, calcium, and phosphorus. But neither it should be too acidic nor alkaline. Flat plant and the level plateaus is an advantage for sugarcane cultivation because it is a facilitated irrigation and transportation of cane to be a sugar mills. Sugarcane cultivation require heavy manure and fertilizer because it is execute for the fertility of soil quickly and extensive. That is important. And the next year, labor. Labor is obtained cultivation and required cheap labor. For human hands are required at every stage: sowing, hoeing, weeding, irrigation, cutting, and carrying sugarcane to be factories. There's a labor is cheap. This is important here. The next year distribution. The distribution is important here. India has the largest area under the sugarcane cultivation in the world and the second largest producer next to be Brazil. The India is the largest area under sugarcane cultivation in the world, but second largest producer is the next to be Brazil. As for a distribution of sugarcane cultivation in India is concerned, there are three districts, geographical region in a country. These regions are the Satluj Ganga plain from the Punjab to Bihar containing 51% of the total area and 60% of country's total production. The important Satluj Ganga plain for Punjab to Bihar contains 51% of the total area of 60% of country as a total production. And this black soil belt from the Maharashtra to be Tamil Nadu along the eastern slope of the western Ghat. And coastal Andhra Pradesh and Krishna river is very important for the distribution of air sugarcane. But important air map of the next on your screen. On your screen, there is a most important map here. The India sugarcane production. You know that the major sugarcane part here, Bihar, there is some part, Uttar Pradesh is the most important, Punjab, Haryana, and other side. Another side is the Maharashtra also, and Kanyakumari is another side here. But Gujarat is here is only important.
This is important. Sugarcane production in India is the maximum part here. The next year, cotton. Cotton is the most important fiber crops not only for India but also of the entire world. It is not only provides a raw material from a cotton textile industry but also its seed is used to the Banaspati oil industry. There is a cotton that is the most important. There is a cotton here use of the crop that is textile industry but also is a Banaspati oil industry. The cotton seeds are also used as a part of the fodder for a milk cattle for a better milk production. Cotton is basically a kharif crop and growing in the tropical and subtropical area. That is important here. And the next year, some of the geographic conditions are flowing here. Then important. First of all, here temperature. Cotton is a crop of tropical and subtropical area and require uniformly high temperature varying between 21 Celsius and 30 Celsius. There is an important and ideal temperature here. But rainfall it is growing mostly in the area having at least 210 forest-free days in a year. There is a 210 forest-free days in a year's rainfall. It's required modest amount of rainfall of 50 to 100 centimeter. And however, cotton is successfully growing with the help of irrigation in the area where is rainfall is less than 50 centimeter. And a high amount of rainfall is the beginning and the sunny and dry weather at the time of reaping are very useful for the good crops. And the next year, soil. Cotton cultivation is very closely related to the black soil and Deccans and the Malwa plateau. However, it is also grow well is a alluvial soil for the Satluj Ganga plain and red and laterite soil is a peninsular region. And also important here labor. Labor as a picking of the cotton has not been made a mechanized till up now. Therefore, a lot of cheap and efficient labor is required at the time of picking. There is important mechanized till now there. And distribution here, India has the largest area under cultivation and third largest producer of cotton next only for China and the USA. Within the country, 2/3 of the total area and production is shared by 4 states. The main states for the cotton production are Punjab, Maharashtra, Gujarat and Haryana. Let's see map on the next on your screen. Here show the map. There is important India as a cotton production. You know that the Punjab side and the Rajasthan areas also occupy in cotton major is a part here. And there is a Maharashtra, Gujarat and some other parts of cotton production in India. That's important here. The next year, oil seeds. Oil seeds is important. It's one of the important group of commercially crop in India. In fact, India has the largest area of production of oil seed in the world. Oil extract from the oil seeds not only from an important item of our diet but also serve as a raw material for the manufacturing of hydrogenated oil, paint, varnish and soap and lubricant etc. There is oil seed is the most important for daily to life. Oil cake there is reduced after the oil is extracted from the oil seed. From as important cattle feed and manure also the important here. And groundnut. Groundnut is the most important oil seed of India. Groundnut is growing both as a kharif and rabi crop, but 90 to 95% of the total area is devoted to be kharif crop. The groundnut is important. And let's see geographical condition. Here shows some of the geographical conditions are flowing here important. First of all, temperature. Temperature travels is best in the tropicals climate and require 30 Celsius to 20 Celsius temperature is important. 20 to 30 Celsius temperature required for this groundnut is growing. And rainfall here 50 to 75 centimeter rainfall is favorable for a groundnut.
And cultivations, that's important. 50 to 75 centimeter rainfall is favorable from ground net and cultivation. It is a highly susceptible to be forest is prolonged drought and continuously rain and stagnant water, and therefore dry winter is needed at the time of reaping. That's important. The next year's soil, there is a well drainage, light, sandy, loamy, red, yellow, and black soil are well suited from the cultivation. That's important. The soil here, sandy, loamy, red, yellow, black soil is suited to the cultivation. And also is important a distribution. It is the most important oil seed of India and account for about half of the major oil seed produced in a country. India is the largest producer of groundnut in the world and account for about one third of the world as the production. This is the most important. The India here is the world has accounted about there one of third of the world of the production. Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Gujarat are three main producers of groundnut in India and account for about 60% of total production. Another 30% of the total production come from to the Maharashtra, Karnataka and Odisha. The important 60% is Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat. The main important area of production of the groundnut. But 30% here are Maharashtra, Karnataka and Odisha. The next year, plantation crop. Their plantation crop is important here. First of all, tea. India is a famous for its a tea garden. India is a famous for its a tea garden. You must have heard about the tea garden of Assam and Darjeeling in the West Bengal. Assam and Darjeeling, the ideal area of tea plantation. It's a began said that the tea plantation in India was started by the Britisher in 1923 when wild tea plants were discovered by them in the hill and forest area of Assam. Tea is made from to the tender spoil out the tea plant by drying them. At present, India is the leading tea producing country in the world. China and Sri Lanka were respectively second and third largest producer of tea, but India is the first country is a higher production of tea. And let's see the geographical condition. Some of the geographical conditions for the growth of tea are flowing here. First of all, temperature. The temperature is the most important variable here. It's require hot and wet climate. It's require hot and wet climate. The ideal temperature for the growth of tea versus and leaf varies is between 20 Celsius to 30 Celsius temperature. Its temperature either rises above 35 Celsius or go below to 10 Celsius. It would be harmful for the growth of tea versus and leaves. The next year, rainfall. The rainfall is important as the mentioned above the tea require a good amount of rainfall ranging between 150 to 300 centimeter, and the annual rainfall should be a well distributed throughout the year. The long dry spell in the harmful for a tea. The next year, soil. Tea bushes grow well is well drainage, deep, favorable loamy soil. However, virgin forest soil rich in the humus and the iron content are considered to be the best soil for the tea plantation. And tea is a shade loving plant and growing better when to planted along with the shady trees. The next year, labor. Cheap and efficient labor is required for the tea production. There is important cheap and efficient labor is required for the tea production. But distribution here, Assam is the leading producer then account for more than 50% of tea production of India. Assam, there is a 50% of production of tea. And tea producing area of Assam are there hill slope and bordering of Brahmaputra and Surma Valley. West Bengal is the second largest producer of the tea, whereas tea is mostly growing in the district of Darjeeling, and Siliguri and Jaipurguri and Koch Bihar district. There is the most important tea production area.
Tamil Nadu is the third largest producer where is a tea growing area and the mostly restricted to be Nilgiri Hill. That's important. Let's see on map on your screen to the next. On your screen, there's the most important map here. India tea production. India is a tea production. The major area is the Darjeeling. The most important Assam side. But some part of Kerala there is important shown on screen. But the other area is the important for the Uttarakhand side. The next year coffee. Coffee. Do you know from where is coffee was about to be India? It is the indigenous crop of Ethiopia. Is Ethiopia Samilia plateaus. From the Ethiopia, it was taken to the Yemen in an 11th century. Yemen in an 11th century from the Arabia, there are seeds were brought to be a Baba Buddhans in an 17th century and the were rises to the Baba Buddhan hills of Karnataka. But it was the British planter who took a keen interest and a large coffee estate were established in the hill of the Western Ghat. There is a coffee is important here. And the next year, geographical condition. Let's see. The some of the geographical condition of the growth of coffees are flowing here. First of all, temperature. Temperature is varied about here. It is required hot and humid climate with the temperature varying between to the 15 Celsius and 28 Celsius. It is generally growing under shade trees. Therefore, a strong sunshine and the high temperature over 30 Celsius. And first, and there is snowfall, harmful for coffee cultivation. There is a snowfall, is a harmful coffee cultivation. And dry weather is necessary at the time. Wrapping of varies. That's important. Wrapping of vary, there is a necessity for the time. And the next year rainfall. The rainfall between 150 to 250 centimeters is favorable for a coffee cultivation. There is important. 150 to 250 centimeters is favorable for a coffee cultivation. And the next year, soil. Well drained is a rich of variable loamy soil containing good deal of humus and mineral like iron and calcium are ideal for a coffee cultivation. The soil must be properly as manure to be turned there is a replenishing fertilizer and to increase some productivity. This is the most important here, soil. The soil is a loamy soil. And the next year labor. Labor like the tea coffee cultivation also require a plenty of cheap and skilled labor for a various purpose like a sowing, transplanting, pouring, plugging, drying and grading and packing of coffee. This is important the labor. And distribution here, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu are main state of the coffee production in India. यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आया है भारत की प्रमुख फसलें। कहते हैं भारत में अगर हम बात करें फसलों की तो यहाँ पर जो है वैरायटियों की कमी नहीं है। यहाँ पर बहुत से वैरायटी जो है उगाए जाते हैं और सबका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। देखा जाए तो भारत जो है बहुत ही विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। तो कहते हैं यहाँ पर जैसे टेम्परेचर अलग अलग होती है, कहते हैं राज्य अलग अलग जैसे होते हैं, उसी प्रकार से क्रॉप का भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो ये भारत की जो है प्रमुख फसलों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है जिसको आपको समझना चाहिए और ये कई महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे CBSE में बहुत जगह पर जो है 9th क्लास में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन कि 10th में भी होता है, प्लस NIS बोर्ड में भी होता है। तो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें किसी भी क्रॉप के बारे में टेम्परेचर या मिट्टी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो कई मानने में ये महत्वपूर्ण यहाँ पर ये प्रश्न उठता है। तो आपको इसके लिए जो है पूरे टॉपिक को देखने के लिए त्रिपाण सेंटर को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर इसमें कौन कौन क्रॉप की क्या क्या विशेषता है। तो आप बने रहे त्रिपाण सेंटर के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ भारत की प्रमुख फसलों की तो मैं एक बात बता दूँ आपको कि भारत में लगभग हर प्रकार की फसलें होती है। भारत में देखा जाए, भारत ऐसा देश है जहाँ पर हर प्रकार की फसलें जो है बहुत ही आसानी से उगाई जाती है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों?
क्या कारण है कि भारत में जो है सैकड़ों प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यदि हम कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात के पश्चिमी तट से जो है अरुणाचल प्रदेश के चरम उत्तर पूर्वी भागों को ध्यान से देखें तो ये सैकड़ों प्रकार की फसलें मिल जाती हैं हमें। और इन सभी प्रकार की फसलों को हम 4 वर्गों में विभक्त किए हैं, जिसके बारे में हम बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक फसल का जो है आपको ब्यूरो यहाँ देंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। देखिए, जो आज हम करेंगे फसलें जो होंगे, खाद्य फसलें होंगे, नकदी फसलें होंगे, वृक्षारोपण फसलें होंगी और एक और फसल होंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करें खाद्य फसलें। तो इसका अर्थ यही होता है कि ये फसलें मानव उपयोग के लिए बहुत उपयोगी होता है और जनरली तौर पर मानव इसका सुबह से शाम तक यूज़ करता है। इसमें मुख्य फसलें आती है चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा और दालें। उसके पश्चात आता है नकदी फसलें। ये फसलें शुद्ध एवं अर्धप्रकित रूप से बेचने के लिए ही उगाई जाती हैं, क्योंकि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा नकदी फसलें। और नकदी फसलें का जो जनरली उपयोग होता है वो बेचने के लिए ही होता है। अगर इसमें हम मुख्य तौर पर देखें तो कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, तिलहन काफ़ी महत्वपूर्ण फसलों आते हैं नकदी फसलों के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है वृक्षारोपण या बागवानी फसलें। देखिए, वृक्षारोपण फसलों का अर्थ क्या है। ये फसलें वृक्षारोपण के द्वारा बड़े क्षेत्र पर उगाए जाते हैं। जैसे आपको पता ही है चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबर, ये ऐसे फसल हैं जो वृक्षारोपण के द्वारा जो है इसको उगाया जाता है। वही अगर हम बागवानी फसलें की बात करें तो बागवानी फसलों के अंदर जो है कृषि का वह भाग जो फल और सब्जी उगाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, चारों के चारों जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहले के बारे में हम जो है विस्तार पर चर्चा करें और जानें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल है और इसकी क्या विशेषता है। चलिए तरफ देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आता है पहली फसल खाद्य फसल। देखिए, खाद्य फसल के अंतर्गत जो आता है फसल वो है चावल। और आपको पता है कि चावल कितना महत्वपूर्ण है और चावल के जो है हज़ारों वैरायटी है जिसके बारे में आप यहाँ पर जानोगे। कहते हैं चावल भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है और यह मुख्य रूप से खरीफ या गर्मी की फसल है। यानी खरीफ के फसल के अंतर्गत जो है चावल की फसल आता है। आपको पता है कि चावल जो होती है ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है उस समय लगाई जाती है। यानी जून जुलाई में जो है चावल को लगाने का प्रावधान है और यह देश के कुल खेती क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर होता है। भारत का यह देखा जाए तो आधी आबादी से ज़्यादा लोगों को भोजन प्रदान करता है। यानी चावल जो है भारत के आधा से अधिक आबादियों को जो है भोजन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण फसल है। कुल आबादी का ज़्यादातर लोग चावल खाने वाले ही होते हैं। देखा जाए तो चावल काफ़ी जो है लोग शौक से खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि चावल उत्पादन के लिए किस किस तरह के भौगोलिक परिस्थिति की आवश्यकता होती है। यदि आप भारत में चावल उत्पादित क्षेत्रों को देखें तो आपको पता चलेगा कि चावल ही एक ऐसी फसल है जो विविध परिस्थितियों में उगाई जाती है। यानी इसकी जो अगर हम बात करें भौगोलिक परिस्थितियाँ तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हमें चावल के बारे में और बताती है। देखिए, हमारे समक्ष जो आया है कुछ भौतिक परिस्थितियाँ, यानी चावल की क्या भौतिक परिस्थितियाँ होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हम तापमान की बात करेंगे, वर्षा की बात करेंगे और वितरण की बात करेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर एक फसलों के लिए या कोई भी मटेरियल्स के लिए। और ये आपको एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है कि इसके लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता है, किन क्षेत्रों में ये मिलता है, इसके लिए आदर्श जो है वर्षा की कितनी मात्रा होती है और इसका प्रमुख राज्य क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर की तरफ से पूछे जाते हैं और अगर आप टॉपिक को ही समझ लोगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है अछूता नहीं रह पाएगा। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं तापमान क्या बताता है हमें। तापमान की बात करें चावल की खेती के लिए तो चावल के लिए गर्म और आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी वाला परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यानी इसमें गर्म भी चाहिए और ह्यूमिडिटी भी चाहिए और ये सबसे आदर्श जो होता है जून जुलाई का समय जो होता है इसी प्रकार की होती है। तापमान सामान्यतः अधिक यानी 24 डिग्री सेल्सियस औसतन मासिक तापमान होना चाहिए जो कि एक आदर्श तापमान के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही चावल की अच्छी उपज के लिए औसतन तापमान जो है 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच सबसे उत्तम माना जाता है। यानी चावल के उत्पादन के लिए 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान काफ़ी आदर्श तापमान माना जाता है। यदि हम वर्षा की बात करें तो कहते हैं चावल उत्पादन के लिए जो है 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा उपयुक्त है। यानी चावल की खेती देखा जाए तो पानी के अंदर ही काफ़ी पर्याप्त होती है, यानी पानी इसके लिए आदर्श होती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश यहाँ वर्षा की मात्रा जो है 100 सेंटीमीटर से भी कम है
और चावल की खेती सिंचाई की मदद से की जाती है। यानी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है सिंचाई के माध्यम से चावल का उत्पादन जो है धड़ल्ले से किया जाता है। अगर हम बात आगे करें मिट्टी की, मृदा की, तो कहते हैं चावल विभिन्न प्रकार की मिट्टी परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। यानी चावल जो है कोई भी मिट्टी में बहुत ही आसानी से उगाई जा सकती है। लेकिन हम अगर आदर्श मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी और बलुआई मिट्टी जो है आदर्श स्थिति प्रदान कर सकती हैं। यानी अगर आप कोई भी मिट्टी में चावल की खेती करोगे तो अच्छा ही होगा, बट इसके लिए अगर और अच्छे चाहते हो तो चिकनी मिट्टी और बलुआई मिट्टी जो है काफ़ी आदर्श मिट्टी माना जाता है। और चावल मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। यानी चावल के लिए मैदानी क्षेत्र काफ़ी आदर्श क्षेत्र होता है, क्योंकि इसको रख रखाव के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। और यह समुद्र तल के नीचे जो है केरल के कुहेलनियान और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है पहाड़ी ढलानों तथा कश्मीर घाटी में उगाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात यहाँ पर करें श्रम की, तो कहते हैं चावल की खेती के लिए आसानी से उपलब्ध सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। और चावल खेती से संबंधित गतिविधियों के केंद्र में श्रम ही होता है। इसकी खेती में मशीनीकरण ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती। तो ये काफ़ी इसको जो है इम्पोर्टेंट बना देता है कि चावल की खेती के लिए अधिक मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसको लगाना बहुत ही सरल होता है और इसको काटना भी बहुत सरल होता है। अगर हम बात करें वितरण की यानी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये मैं आपको बता दूं कि चावल भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाए जाते हैं। और मुख्य चावल उत्पादक राज्यों की बात करें हम तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम और महाराष्ट्र है। और यह हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और कश्मीर घाटी में उगाया जाता है, जो एक और भी आदर्श जगह बताया जा सकता है। अब इसी बात को अगर हम मैप में देखने की कोशिश करें और एनालाइज करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में मैप भी आने वाला है। तो आप इसे ये देख सकते हो कि किस क्षेत्र में जो है चावल की खेती अधिकतम होता है। चलिए देखते हैं मैप और समझने की कोशिश करें कि चावल का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत में चावल उत्पादन क्षेत्र ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिए प्रमुख क्षेत्र जो है डार्क ग्रीन आपको शो हो रहा होगा, तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस किस राज्यों में होगा। आपको दिख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इवन केरल, सब क्षेत्रों में जो है बेखूबी जो है चावल की प्रमुख उत्पादन होती है। अगर कुछ क्षेत्रों में देखें जहाँ पर कम मात्रा में उत्पादन होता है, तो ये देख सकते हो कि पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट भी है, इवन महाराष्ट्र के भी पार्ट भी दिख रहा होगा, गुजरात के भी पार्ट कुछ नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके मैप के अंतर्गत समझना बहुत ही आसान हो जाता है। एग्जामिनर जो है प्रमुख फसल उत्पादन जो देखा जाए चावल की, तो उसके बारे में जरूर जो है मैप के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है। तो इस मैप को अगर आप समझ लेते हो तो ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप देखिए, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। आगे हमारे समक्ष आया है गेहूँ। देखिए गेहूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं गेहूँ तो सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है और यह भारत में चावल के बाद रबी या सर्दियों की फसल मानी जाती है, क्योंकि यह रबी फसल है और इसको सर्दियों में जो है लगाने का प्रावधान है। यह सर्दियों की शुरुआत में बोया जाता है और गर्मी की शुरुआत में इसको काट लिया जाता है। आमतौर पर उत्तर भारत में गेहूं की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर के महीनों में ही होती है और कटाई जो होती है मार्च अप्रैल के महीनों में किया जाता है। यानी मार्च अप्रैल में से कटाई का समय काल होता है और यह विशेष रूप से भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में लोगों का जो है भोजन का मुख्य स्रोत है। यानी देखा जाए तो भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में लोग जो है गेहूं का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग करते हैं। अगर बात करें चावल के जो है विपरीत, गेहूं ज़्यादातर जो है रबी और सर्दियों के फसल के रूप में उगाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है गेहूं। अब चलिए देखते हैं इसके भौगोलिक परिस्थितियाँ। अब हमारे समक्ष जो आया है भौगोलिक परिस्थितियाँ। देखिए भौगोलिक परिस्थितियाँ के अंतर्गत जो आया है, सबसे पहले हम तापमान पर नज़र डालें तो तापमान यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जैसे सर्दियों में बोई जाती है तो जर्नल सी बात है यहाँ पर टेम्परेचर भी कम ही चाहिए, लेकिन काटने का समय काल जो होती है गर्मियों का टाइम, क्योंकि पकने में इसको गर्मी की आवश्यकता होती है, तो कटाई जो है गर्म टाइम में की जाती है। तो तापमान के अंतर्गत बात करते हैं मुख्य रूप से मध्य अक्षांश चरगाह की फसल है और इसे ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है। और बुआई के समय आदर्श तापमान जो होनी चाहिए वो 10 से 15 जो है डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि काफ़ी आदर्श मानी जाती है 10 से 15। और पकने एवं काटने का समय जो होता है 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तो ये इसका आदर्श तापमान माना जाता है। तापमान काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है।
अगर हम वर्षा की बात करें तो इसकी वर्षा जो है कम की आवश्यकता होती है। लगभग जो है 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की फसल जो है बहुत सफल है, यानी 75-20 के लिए चल जाती है काम। गेहूं की खेती के लिए अधिकतम वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर के आसपास ही चाहिए। और आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर 100 से अधिक होती है टेम्परेचर बरसात, वहाँ पर जो है चावल उगाने की प्रावधान किया गया है। और चावल की तरह ही वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से भी कम चाहिए, और वहाँ सिंचाई द्वारा गेहूँ उगाया जा सकता है। पकने के समय हल्की वर्षा पैदावार बढ़ाने में मददगार होती है। यानी देखिए, जब इसको पकने का समय होता है, अगर बरसात हो जाती है तो इसके फल जो होते हैं काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पकने के टाइम अगर बरसात हो जाती है तो पैदावार जो है काफ़ी बढ़ भी जाती है, तो ये महत्व रखता है। परंतु दूसरी ओर पुष्पन के समय पाला और काटने के समय ओला भी गेहूं की पैदावार को काफ़ी कम कर देता है। आपको पता है, जब इसको गेहूं काटने का समय होता है तो बरसात भी जो है, ओला भी इसको ख़राब कर देता है। इवन कि जब पुष्पन का टाइम होता है तब पाला भी मारता है। तो इसके कारण भी गेहूं का जो है उच्चतम उत्पादन होने के लिए आदर्श जो है नहीं बना सकता। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मृदा। देखिए, यहाँ पे गेहूं की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर किया जा सकता है, परंतु अनुकूल जल निष्कासन वाली उपजाऊ दोमट और चिकनी मिट्टी गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। क्योंकि अगर देखा जाए तो गेहूं के उत्पादन के लिए दोमट और चिकनी मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपना स्थान। लेकिन बात वहीं हम श्रम की करें तो कहते हैं गेहूं की खेती विस्तृत क्षेत्र पर की जा सकती है, और यह काफ़ी यंत्रीकृत है, यानी इसको यंत्र का काफ़ी उपयोग किया जाता है। अंततः कम श्रम की आवश्यकता इसमें होती है और यंत्रों की आवश्यकता अधिक होती है। अगर वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। भारत में गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं बात करें देश में कुल उत्पादन का 66% से भी ज़्यादा भाग केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में ही होता है। आप समझ सकते हो कि 66% गेहूं का उत्पादन जो है सिर्फ 3 स्टेट करता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अब चलिए देखते हैं मैप में कि इन क्षेत्रों को किस प्रकार दर्शाया गया है। देखिए, आपके समक्ष जो प्रस्तुत यहाँ पर मैप हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत गेहूं उत्पादन क्षेत्र। अब देखिए, इसका क्षेत्र आप जैसे हमने बात किया था कि 66% जो है 3 राज्यों ने ही ले लिया है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो इसी बात को यहाँ भी दर्शाया गया है। पर मुख्य क्षेत्र जो है आप देख सकते हो कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, और कुछ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के भी दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम व्यू से अगर आपको क्षेत्र पूछा जाए तो आप बेखूबी जो है इन क्षेत्रों को गेहूं उत्पादन के क्षेत्र के रूप में दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी मैप इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। आगे हमारे समक्ष आया है बाजरा। बाजरा कम अवधि वाला गर्म जो है मौसम का फसल है, यानी बाजरा जो है कम अवधि वाला गर्म मौसम का फसल है, और यह मोटे अनाज की फसल के रूप में जाना जाता है। और इन्हें भोजन और चारा दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। भोजन के लिए भी उपयोग किया जाता है तो चारा के लिए भी उपयोग किया जाता है। और यह खरीफ की फसलें हैं, यानी देखा जाए तो ये जो है खरीफ की फसल है, और यह मई अगस्त में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। आज बाजरा आमतौर पर गरीब लोगों का मुख्य भोजन बन गया है। आज देखा जाए तो गरीब लोग जो है बाजरे का जो है बेखूबी प्रयोग करते हैं, और भारत में बाजरा बहुत उगाया जाता है और विभिन्न भागों में अनेक स्थानीय नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ ज्वार भी कहते हैं, बाजरा भी कहते हैं, रागी भी कहते हैं, कोरा भी कहते हैं, कोरदो भी कहते हैं, कुटकी भी कहते हैं, राका भी कहते हैं, बाउटी, राजगिरी आदि। यानी देखा जाए तो साधारण नामों में इसको बहुत से नामों से जाना जाता है। और भारत में ज्वार, बाजरा और रागी बड़े क्षेत्र पर उगाए जाते हैं, पर दुर्भाग्य से इस फसलों के अंतर्गत क्षेत्र की कमी बड़ी तेज़ी से हुई है। यानी देखा जाए तो बहुत ही आज के समय में जो है इसका उत्पादन बहुत ही कम गया है। यदि अब बात हम करें इन फसलों को उगाने के लिए कुछ भौगोलिक परिस्थितियां किस प्रकार है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पहला तो आपको पता ही है कि तापमान, क्योंकि कोई भी फसल हो उसका तापमान, वर्षा, मृदा और वितरण काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है। तापमान की बात करें तो ये फसलें वहाँ उगाई जाती है जहाँ उच्च तापमान होता है, और जहाँ तापमान में जो है 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि तापमान जो है
27 से 32 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के बीच होना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्व रखता है अपने जगह पे। वहीं वर्षा की बात करें तो जैसे कि पहले भी चर्चा की गई है कि बाजरा शुष्क भूमि फसल है, इसलिए 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा बाजरा के लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा। बात करें मृदा की, तो मृदा तो आपको पता है मिट्टी की कमियों के प्रति बाजरा कम संवेदनशील है, यानी ये निम्न जलोढ़ या चिकनी बलुआई मिट्टी में उगाया जा सकता है। तो देखा जाए तो ये जो है मिट्टी के प्रति कम संवेदनशील, यानी किसी भी मिट्टी में उगाना बहुत ही सहज हो जाता है। उसके पश्चात बात करें वितरण की, तो कहते हैं ज्वार बाजरा उत्तर और दक्षिण भारत में उगाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जबकि आमतौर पर रागी दक्षिण भारत में केंद्रित है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में ज्वार बाजरा उगाया जाता है, और आमतौर पर रागी जो है दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में केंद्रित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आगे आया है दलहन, काफ़ी महत्वपूर्ण है दलहन। दलहन में अनेक फसलों को रखा जाता है जो ज़्यादातर फली होती है, यानी दलहन तो आपको समझ में आ गया कि दालों की हम बात करने जा रहे हैं, ज़्यादातर फली होते हैं। यह भारत के शाकाहारी लोगों के लिए अमूल्य प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। जो व्यक्ति शाकाहारी हैं उनके लिए जो है ये प्रोटीन का अमूल्य स्रोत माना जाता है दलहन। कहते हैं मांस और मछली खाने वालों की तुलना में शाकाहारियों की जो है प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत कम है, और वो पशुओं के लिए चारा और अनाज के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसके अतिरिक्त ये फली फसलों वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है मिट्टी में योगित करती है। सामान्यतः अन्य फसलों से जो है आवर्तित करके मृदा की उर्वरकता में भी बनाए रखा जा सकता है। भारत में विभिन्न प्रकार के दलहन पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत में देखिए तो बहुत तरह के जो है दलहन पाया जाता है, और ये चना, तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, कुल्फी, मटर आदि काफ़ी महत्वपूर्ण दलहन चीज़ें हैं, परंतु इस सब में चना और तूर या अरहर ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी चना और अरहर काफ़ी महंगे भी हैं तो काफ़ी उपयोगी भी हैं, और सभी घरों के शान भी हैं। अरहर महंगा है तो चना जो है उससे काफ़ी सस्ता है, तो इनका जो है हर एक घर में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि बात हम करें यहाँ चना की, तो कहते हैं चना अभी दालों में सबसे महत्वपूर्ण है, और कुल दलहनों के उत्पादन का जो है 37% भाग चने से ही आता है, जबकि चना दालों के कुल क्षेत्रफल का 30% पर ही चना होता है। और यह रबी की फसल है, जो सितंबर में नवंबर के बीच में ये बोया जाता है, और फरवरी से अप्रैल के बीच में काट लिया जाता है। यह या तो एक नगद फसल के रूप में खेती की जा सकती है, या गेहूँ, जौ, आसी या सरसों के साथ मिलाकर खेती की जा सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण तो और भी है इसकी भौगोलिक परिस्थिति। चलिए देखते हैं भौगोलिक परिस्थिति। कहते हैं अगर हम भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो सबसे पहले तो यही आता है तापमान। कहते हैं तापमान विस्तृत जलवायु परिस्थिति में चना की खेती की जा सकती है, यानी कोई भी परिस्थिति जो है तापमान की इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ हल्के शीतलन जलवायु एवं शुष्क अवस्था काफ़ी उत्तम माना जाता है चना की खेती के लिए। और वर्षा की मात्रा देखें तो वर्षा इसमें मान्य नहीं करता, यानी 40 से 45 सेंटीमीटर वर्षा चना की खेती के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो यह चिकनी बलुआई मिट्टी पर अच्छी उपज देती है, तो इसलिए चिकनी और बलुआई मिट्टी जो होती है काफ़ी आदर्श मिट्टी मानी जाती है। यदि हम बात करें वितरण की, हालांकि चना देश के कई भागों में होता है, और यद्यपि कुल उत्पादन का 90% भाग 5 राज्यों से ही आता है, और ये 5 राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र। कहते हैं ये 5 राज्य जो है चना उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नगदी फसलें। देखिए नगदी फसलें का अपना एक अलग स्थान है, और ये व्यापार के लिए बेखूबी यूज़ किया जाता है, तो इसकी महत्वता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यद्यपि पाठ की शुरुआत में उल्लेख किया गया था कि नगदी फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिसे या तो शुद्ध या जो है अर्ध प्रकृति के रूप में बेचने के लिए ही उगाया जाता है। और इस भाग में कुछ चुने हुए नगदी फसलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे गन्ना, कपास, जूट, 2 पेय पदार्थ, चाय और कॉफ़ी के बीज, तिलहन, मूंगफली, सरसों और जैद सीड्स। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और इस भाग में हम अधिक जो चयनित
नकदी फसल यानी गन्ना, कपास, जूट के बारे में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला हमारा जो है फसल, नकदी फसल कौन है। पहली जो यहाँ पर नकदी फसल आया है वो है गन्ना। देखिए, क्या आप अपने दिनचर्या में बिना चीनी के जीवन की कल्पना कर सकते हो? संभव ही नहीं है। आज देखिए, कहते हैं शुगर की भी बीमारी है, लेकिन शुगर के बिना हम रह नहीं सकते। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो दिनचर्या होती है वो चीनी से कहीं ना कहीं शुरू ही होती है। चीनी के बिना जीवन के बारे में सोचना असंभव सी बात लगती है। क्या आप जानते हैं कि गन्ना बांस परिवार के अंतर्गत आता है? यानी गन्ना जो होता है बांस के अंतर्गत आता है, यानी बम्बू जो होती है इसके वंशज के रूप में देखा जा सकता है। और यह भारत के लिए स्वदेशी है और यह एक खरीफ फसल है। यह चीनी, गुड़ और जो है खड़ साड़ी का जो है मुख्य स्रोत के रूप में देखा जाता है। इवन की शराब तैयार करने के लिए कच्चे माल प्रदान करता है। यानी शराब का जो है उत्पादन के लिए भी जो है गन्ने का हम बेखूबी उपयोग करते हैं। खोए, कुचले और गन्ने के अवशेष का भी कई उपयोग होते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कागज़ बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और यह पेट्रोल उत्पादन के लिए कारगर विकल्प है। यानी पेट्रोल उत्पादन करने के लिए गन्ना जो है कारगर विकल्प के रूप में आने वाला समय में अपना स्थान निभा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य रासायनिक उत्पादक का भी विकल्प के रूप में है और इसके चारों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो चारों के रूप में भी उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। गन्ने के उत्पादन के लिए कुछ भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले तो तापमान की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए वार्षिक औसत तापमान जो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी ये ह्यूमिडिटी कंडीशन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। वर्षा की बात करें तो गन्ना की खेती के लिए जो है 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा काफ़ी अनुकूल मानी जाती है और जहां वर्षा निर्धारित सीमा से भी कम हो उन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये सिंचाई के द्वारा भी इसकी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उसके पश्चात आता है मिट्टी। देखिए, यह विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। वास्तव में गन्ना किसी भी मिट्टी में हो सकती है। गन्ना जो है किसी भी मिट्टी में होना इस स्वाभाविक बनाता है जिसमें नमी बनाए रखने की क्षमता हो। यानी नमी होगा तो गन्ना की खेती बखूबी की जा सकती है। लेकिन गहरी चिकनी बलुआई मिट्टी इसके पैदावार के लिए एक आदर्श मिट्टी मानी जाती है। लेकिन देखा जाए तो गहरी चिकनी बलुआई मिट्टी इसके पैदावार के लिए आदर्श मिट्टी है और मिट्टी जो है नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस में समृद्ध होना चाहिए। लेकिन ना तो ये अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। ना तो ये अम्लीय में होता है, ना अधिक क्षारीय में होता है। ये न्यूट्रल में काफ़ी अच्छा फसल दे सकता है और समतल मैदान और चौरस पठार खेती के लिए लाभदायक भी काफ़ी रहता है। क्योंकि खेती की सिंचाई और गन्ने की ढुआई आसान होती है तो गन्ने की खेती के लिए ज़्यादा खाद और उर्वरक की आवश्यकता है, क्योंकि यह जल्दी और बड़े पैमाने पर मिट्टी की उर्वरकता को खींच लेती है। क्योंकि कहते हैं ये काफ़ी मात्रा में जो है मिट्टी की उर्वरकता जो बहुत आसानी से हर्ष कर देती है। उसके पश्चात बात करें हम श्रम की तो कहते हैं यह श्रम केंद्रित होती है और इसके लिए जो है सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। हर एक अवस्था में मानव के उपयोग की आवश्यकता होती है, जैसे बुआई के लिए, गुड़ाई, निराई, सिंचाई, कटाई तक गन्ने के जो है चीनी मिल तक की धुलाई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम वितरण की बात करें, दुनिया में गन्ने की खेती का धार भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है। यानी देखा जाए तो गन्ना के उत्पादन में भारत नंबर 1 है और दूसरा नंबर पर स्थान आता है ब्राज़ील का। यानी भारत नंबर 1 है गन्ना के उत्पादन में और दूसरा नंबर पे आता है ब्राज़ील। जहाँ तक भारत में गन्ने की खेती की वितरण के संबंध है, देश में 3 विशिष्ट क्षेत्रों में ये उगाए जाते हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं। देखा जाए तो सतलुज जो है पंजाब, बिहार तथा जो है सतलुज गंगा का मैदान भाग देश के 51% गन्ना क्षेत्र तथा 60% गन्ना उत्पादन करता है। तो आप समझ सकते हो सतलुज पंजाब से बिहार तक जो है कितना महत्वपूर्ण है। बात करें पश्चिमी घाट से पूर्वी घाटों के साथ महाराष्ट्र जो है तमिलनाडु तक काली मिट्टी का एक पट्टी है। अगर बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी आदि का तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हो भली भांति कि गन्ना के प्रमुख क्षेत्र जो है, जैसे आप देख सकते हो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी कुछ क्षेत्र हैं। इवन कि महाराष्ट्र भी दिख रहा होगा, गुजरात भी दिख रहा होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है गन्ना उत्पादन के क्षेत्र के अंतर्गत और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है और मैप में भी भरने को आता है। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण मैप रहता है। उसके पश्चात आता है कपास। देखिए, कपास काफ़ी महत्वपूर्ण है। कपास ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है।
यानी कपास देखा जाए तो हर क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है और यह न केवल सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है बल्कि इसके बीज से वनस्पति तेल उद्योग में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो आप समझ सकते हो कि कपास की फसल कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ जो है ये रिफाइनरी ऑयल के क्षेत्रों में भी काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। कपास के बीज भी बेहतर दूध उत्पन्न के लिए दुधारू पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कि कपास के बीज से जो है बेहतर दूध देने वाले गायों में जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखता है। कपास मूल्य जो है स्वरूप से ये काफ़ी खरीफ के फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होता है। तो कपास की खेती काफ़ी महत्वपूर्ण है हर क्षेत्रों के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। चलिए देखते हैं भौगोलिक परिस्थिति देख के ही हम आगे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि भौगोलिक परिस्थितियाँ किस प्रकार है। अगर हम तापमान की बात करें तो कपास उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है और इसके लिए सामान्य रूप से तापमान चाहिए 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। यानी 21 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है एक आदर्श तापमान माना जा सकता है। यदि हम वर्षा की बात करें तो वर्षा आमतौर पर कम से कम पाला मुक्त यानी 210 दिन वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है और इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम है वहाँ सिंचाई द्वारा सफलतापूर्वक जो है इसे उगाया जा सकता है। और अच्छे कपास की उपज के लिए आरंभ में उच्च वर्षा और प्रवृत्त होने के समय शुष्क और धूप वाला मौसम काफ़ी लाभदायक होता है। जैसे कि आप समझ सकते हो गेहूं का जैसे पैदावार होता है वैसा ही इसका भी उसी के अंतर्गत आता है कि गेहूं में भी होता है तापमान जो है बुआई के समय कम चाहिए और कटाई के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात आता है मृदा। देखिए कपास की खेती बहुत ही बारीक से डेक्कन और मलबा पठार की काली मिट्टियों में संबंधित है। हालांकि ये सतलुज गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के लाल और लेटराइट जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से उपजाया जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यदि आप बात करें हम श्रम की तो कहते हैं कपास के चुनने के काम को अब तक जो है यंत्रीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि कपास को चुनने के लिए अभी भी मशीनों का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। अंत कपास को चुनने के लिए सस्ते एवं कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है क्योंकि आने वाला समय में हो सकता है कि यंत्र बन जाए इसके लिए, लेकिन अभी तो जो है हम श्रम पे ही निर्भर है। अगर हम वितरण की बात करें तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा कपास उगाने का क्षेत्र है। यानी भारत में सबसे अधिक जो है कपास उगाई जाती है तथा यह विश्व के तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। यानी भारत जो है विश्व में तीसरा बड़ा देश है और सबसे पहला नंबर पे चीन आता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, उसके बाद तीसरा नंबर पर भारत का स्थान है। क्योंकि कपास आपको पता है इतना महत्वपूर्ण है तभी तो चाइना का अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है और इवन कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भी अर्थव्यवस्था इतना मजबूत है क्योंकि वो कपास की फसल के लिए काफ़ी अनुकूल है और वो काफ़ी इस पर जोर भी देती है। इसलिए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1-2 पे है और भारत जो है तीसरे नंबर पे इसके अंतर्गत आता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कपास की खेती के लिए सबसे जो है किस राज्य में सबसे किस देश में सबसे अधिक होता है, तो चीन सबसे नंबर 1 है, तो आपको पता लग ही गया होगा। और ये भी पूछा जा सकता है भारत का जो है कपास उत्पादन में कौन सा नंबर है, तो नंबर 3 है। तो कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिर्फ आपको टॉपिक समझ में रहना बहुत जरूरी है। देश के भीतर कुल क्षेत्रफल और उत्पादन का 2/3 भाग 4 राज्यों से ही आता है। कपास उत्पादन के लिए मुख्य राज्य जो है पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। और आप जानते भी हो कि ये क्षेत्र काफ़ी अमीर है क्योंकि कपास इतनी महत्वपूर्ण है कि हर जगह जो है अपनी महत्ता को बनाए रखता है। अब चलिए इसी के अंतर्गत हम मैप भी देख लेते हैं और मैप में जनरली सी बात है आपको पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा का ही जो है बात दिखाई देगी, प्लस कुछ और भी दिखाई देगी। तो चलिए मैप को हम अध्ययन करें और समझने की कोशिश करें कि मैप में जो है कपास का वितरण किस प्रकार से दर्शाया गया है। देखिए आपके समक्ष जो प्रस्तुत हुआ है भारत में कपास उत्पादक क्षेत्र, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि ये जो काफ़ी है, गुजरात भी दिख रहा होगा आपको, महाराष्ट्र भी, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्र भी कुछ दिख रहे हैं। तो ये कपास उत्पादन के लिए काफ़ी प्रमुख क्षेत्र हैं जो आपके स्क्रीन पे मैप के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है तिलहन। देखिए भारत में
वाणिज्यिक फसलों के महत्वपूर्ण समूहों में तिलहन एक बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है और भारत तिलहन के क्षेत्र और उत्पादन विश्व में अग्रणीय है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है तिलहन के उत्पादन भारत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तव में भारत के तिलहन से निकलते तेल न केवल हमारे आहार का मुख्य भाग है बल्कि हाइड्रोकृत तेलों, पेंट, वर्निश, साबुन, चिकनाई आदि निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए तिलहन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तिलहन से तेल निकलने के बाद जो है बचा अवशेष महत्वपूर्ण पशु आहार और खाद्य के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि पशुओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस खेत के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इवन कहते हैं ह्यूमंस के भी लिए, मानव के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसे न जाने कितने प्रकार के चीज़ों का जो है सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। अगर सबसे पहले हम तिलहन की बात करें तो आता है मूंगफली। मूंगफली ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन है और मूंगफली खरीफ और रबी फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पर कि ऐसा कौन सा फसल है जो खरीफ के अंतर्गत भी आता है और रबी के भी अंतर्गत आता है। तो ऐसा फसल सिर्फ मूंगफली है। मूंगफली खरीफ और रबी फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रफल का जो है 90 से 95% क्षेत्र खरीफ फसलों के रूप में ही है। यानी देखा जाए तो मुख्य तौर पर इसको खरीफ की फसल ही कहा जाता है, लेकिन इसको रबी की फसल के रूप में भी उगाने का प्रावधान है। अब यदि हम बात करें तापमान की तो कहते हैं तापमान काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, जो कि हमारा भौगोलिक परिस्थिति के अंतर्गत है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छा उपज होता है और इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें वर्षा की तो कहते हैं 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जो है मूंगफली तेल के लिए काफ़ी अनुकूल है। यानी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा मूंगफली के खेत के लिए काफ़ी अनुकूल है और यह अतिरिक्त जो है ठंड, लंबे समय तक सूखा और लगातार बारिश और स्थिर पानी के प्रति अति संवेदनशील है। इसलिए पकने के लिए समय शुष्क और शीत ऋतु की जरूरत होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको पता है, देखिए ये सर्दियों में ही काफ़ी मिलता है हमें। अगर हम मिट्टी की बात करते हैं, इसकी खेती के लिए अच्छी निकास वाली हल्के रेतीली दोमट लाल मिट्टी और काली मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। यानी हल्के जो है रेतीले दोमट लाल पीली और काली मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात वितरण की बात करें तो कहते हैं यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण तिलहन है और देश में उत्पादित जो है कुल प्रमुख तिलहनों में से आधा भाग मूंगफली द्वारा ही पूरा होता है। अब भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है और विश्व उत्पादन का 1/3 भाग भारत में ही होता है। देखिए 1/3 ही होता है, बाकी सारे पार्ट दूसरे देशों में होता है। और भारत में प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ पर जो है मूंगफली का उत्पादन की जाती है। और ये तीनों राज्यों में मिलकर भारत कुल उत्पादन का 60% देता है। यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात भारत को 60% मूंगफली का उत्पादन देता है और अन्य 40% भाग महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा से आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वृक्षरोपण फसल। देखिए वृक्षरोपण फसल काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है और आपको पता होगा भी कि वृक्षरोपण फसल है। और वृक्षरोपण फसल के अंतर्गत देखें तो पहला नाम तो हमारा चाय का ही आता है, क्योंकि आपको पता है सुबह हो या शाम चाय के बिना ज़िंदगी है बेकार। ये आप लोग भली भांति जानते हो। कहते हैं लग जाए जिसको चाय का आदत एक बार वो मांगे बार बार चाय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और आपको पता है भारत में सबसे अधिक चायों का जो है उपयोग किया जाता है और इसलिए चाय काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले के समय में भारत में चाय का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अपने साथ चाय के बागान भी लेते हुए आए और कर दिए भारत को भी चाय के आदी। और देखा जाए तो चाय में कैफीन होता है जो एक तरह का जहरीला पदार्थ होता है और ये धीरे धीरे इंसान को ख़त्म भी कर सकता है। तो चाय का सेवन कम हो तो ही बेहतर है। बात करें हम चाय की तो कहते हैं चाय भारत बागानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और असम और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के चाय बागानों के बारे में आपने सुना ही होगा। दार्जिलिंग जहाँ पर चाय का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है और ये कहा जाता है कि भारत में चाय बागान अंग्रेज़ों द्वारा 1923 में शुरू किया गया था। यानी भारत में चाय का बागान जो 1923 में शुरू किया गया था और उस समय उन लोगों द्वारा असम के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में जंगली चाय पौधों को खोजा गया। चाय पौधों के कोमल अंकुरित पत्तों को सुखाकर तैयार की जाती है और वर्तमान में भारत
दुनिया में अग्रणी चाय उत्पादक देश बन गया है और चीन और श्रीलंका दूसरे और तीसरे स्थान पे आता है। यानी भारत जो है खपत करने में भी नंबर 1 है और उगाने में भी नंबर 1 है। उसके बाद चीन का दूसरा स्थान और श्रीलंका का जो है तीसरा स्थान आता है। यानी चीन का दूसरा स्थान आता है और श्रीलंका का तीसरा स्थान आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत जो है नंबर 1 है कंज्यूम करने में भी और उत्पादन में भी। अब चलिए इसके भौगोलिक परिस्थिति देखें। यदि हम बात करें चाय के उत्पादन के लिए कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ, तो देखिए तापमान सबसे पहले आता है। इसके लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है और चाय पौधे और पत्तियों के विकास के लिए आदर्श तापमान जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। यदि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या 10 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाता है तो चाय की झाड़ियाँ और पत्तियों के विकास के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध होता है। तो देखिए कोई भी फसल उगाने के लिए तापमान जो होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात आता है वर्षा की, यानी वर्षा भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि चाय उत्पादन के लिए ज़्यादा वर्षा चाहिए। अब वर्षा का वितरण पूरे वर्ष भर कुल मिलाकर एक जैसा होना चाहिए, यानी लंबा सूखा काल चाय के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए यहाँ वार्षिक वर्षा जो है 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जनरली सी बात है ये कंडीशन हमें असम के साइड ही प्रयुक्त होता है। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भी साफ़ है कि चाय पौधे जो है चाय के पौधे अच्छी निकास वाले गहरे मुरे चिकनी बलुआई मिट्टी में बहुत ही बढ़ता है। यद्यपि अछूता जंगली मृदा जो हुमस और लोह तत्व युक्त हो चाय बागानों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। चाय छाया से नहीं पौधा है और जब छायादार पेड़ के साथ लगाया जाता है तो इसका अच्छा विकास होता है। यानी अगर चाय का अगर बागान लगाने की विचार कर रहे हो तो आपको उसके साथ बड़े बड़े पौधे भी लगाने पड़ेंगे जो कि चाय के लिए उपयुक्त होता है। उसके पश्चात बात करें हम श्रम की, तो कहते हैं सस्ता और कुशल मजदूर चाय उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यानी चाय के लिए सस्ता और कुशल मजदूर होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वितरण की बात करें तो असम चाय उत्पादन में अग्रणी है। असम का नाम सबसे नंबर 1 है और ये नंबर 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये सारी कंडीशन जो है बेखूबी मिल जाता है। भारत कुल चाय उत्पादन का 50% से भी ज़्यादा असम में ही होता है और असम का चाय उत्पादन क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। पश्चिम बंगाल चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है जहाँ चाय ज़्यादातर दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार जिलों में उगाया जाता है। तमिलनाडु तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है जहाँ चाय ज़्यादातर नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ खास भागों में ही उगाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए भारत में चाय उत्पादन क्षेत्र जो कि मैप के अंतर्गत है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 स्थान जो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुख्य जो है असम ही है। यानी कभी बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है तो आपके माइंड में सिर्फ इतना ही होना चाहिए, असम। ठीक है, असम में ही यहाँ पर उगाया जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी रखता है एग्ज़ाम व्यू से। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कॉफ़ी। देखिए कॉफ़ी, क्या आप जानते हैं भारत में कॉफ़ी कहाँ से आया है? यह इथोपिया वेस्टर्निया पठार का मूल निवासी पौधा है। यानी देखा जाए तो कॉफ़ी भारत का नहीं है और इसे इथोपिया से लाया गया है और यह इथोपिया का मूल निवासी पौधा है। इथियोपिया से यह 11वीं सदी में अरब लाया गया था और अरब के जो है बीज बाबा बुद्दीन द्वारा 17वीं सदी में कर्नाटक के बाबा बुडान पहाड़ी पर यह लगाया गया। लेकिन ब्रिटिश बागान मालिकों ने गहरी रुचि लिया और बड़े जो है कॉफ़ी बागान के रूप में उत्पादन पश्चिम घाट की पहाड़ियों पर स्थापित किया गया। यानी कॉफ़ी के बात करें तो पहले भारत का ये नहीं था, लेकिन इसको जो है इथोपिया से लाया गया और इसको जो है विकास किया गया। लेकिन सबसे अधिक विकास जो है ब्रिटिश के टाइम में पीरियड में हुआ जहाँ पर कॉफ़ी ने अपनी चरम सीमा तक पहुँचा। अगर हम बात करें इसके भौगोलिक परिस्थिति तो चलिए देखते हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ। सबसे पहले हमारे समक्ष आया है तापमान। तो इसके लिए गर्म तथा नम्र जलवायु चाहिए जिसमें तापमान जो है 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच हो और यह आमतौर पर छायादार वृक्षों के नीचे ज़्यादा बेहतर उगाया जाता है। यानी छायादार वृक्षों के नीचे जैसे चाय उगाई जाती है उसी प्रकार जो है कॉफ़ी उत्पादन के भी प्रावधान है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है तीव्र धूप यहाँ पर देखा जाए तो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान और पाला हिमवर्षा काफ़ी बागान के लिए घातक सिद्ध होता है।
कॉफ़ी के फलों के प्रौढ़ होने के साथ शुष्क मौसम भी जरूरी है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वर्षा की बात करें तो हम यहाँ पर, तो वर्षा कॉफ़ी खेती के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल है, यानी यहाँ पर काफ़ी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात है मृदा। देखिए, अच्छी निकास वाली उपजाऊ मुरमुरी चिकनी बलुआई मिट्टी की ह्यूमस लोह और जो कैल्शियम जैसे खनिजों से युक्त मृदा कॉफ़ी खेती के लिए आदर्श सिद्ध हुआ है। मृदा की उर्वरकता बनाए रखने एवं उसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए जो है भरपूर खाद डालना आवश्यक होता है, ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर श्रम की बात करें तो चाय की तरह कॉफ़ी की खेती के लिए विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने हेतु सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, जैसे बुआई, प्रतिरोपण, छटाई, तराई, रंगाई, क्रम निर्धारण तथा कॉफ़ी की बढ़ाई, डब्बे भराई, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं इसकी बहुत ही काफ़ी अधिक प्रोसेसिंग होती है। अगर हम वितरण की बात करें तो ये मैक्सिमम जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु भारत में काफ़ी उत्पादन के मुख्य राज्य हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य हैं कॉफ़ी उत्पादन के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। फसलों के अंतर्गत हमने पूरी बातों को जानने की कोशिश किया और समझने की कोशिश किया। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी, समझ में आया, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, जिसके साथ भी शेयर कीजिए, लेकिन कीजिए। इससे ये होगा कि ये वीडियो उन तक भी बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा और वो भी जो है इस सिलेबस से अवगत हो सकेंगे। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। और पहली बार अगर देख रहे थे और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इससे ये होगा कि आपको कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप तक खुद ही पहुंच जाएगा। और मान लीजिए रिसर्च के अंतर्गत आप मेरे चैनल पे आते हो, देखते हो, फिर चले जाते हो, लेकिन मान लीजिए कोई टॉपिक मैं अगर बीच में डालता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और क्या पता वो एग्ज़ाम में भी आ जाए, तो आप उस टॉपिक से अनभिज्ञ तो हो ही जाओगे ना। तो इसलिए कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर सिर्फ आपका है और आपके लिए ही कार्यशील है। तो सबसे अच्छा है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है समय समय पे आपको जो है तिरपान स्टडी सेंटर की हर एक वीडियो मिलेगी। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं कीजिए, अच्छे काम के लिए विचार की आवश्यकता नहीं होती है। तो जल्दी अभी जो रेड बटन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।